morning, all of you. Myself, Kamlesh Singh. I am going to teach you my book of class 10. We will discuss and learn about chapter 6 manufacturing industries, locating and labeling. Only we have already discussed and we have learned about software technology parks. These are the very important city in our country, and this is the famous city of its respective state. For example, we will talk about Noida. Noida is already located in Uttar Pradesh, and this is also IT city of Uttar Pradesh. And Gandhinagar. As all of you know that Gandhinagar is the also capital of Gujarat. That's why it is also very famous for the state as well as for the country. And Mumbai. Mumbai is the also capital of Maharashtra, and Mumbai is also called the financial capital of India. And Pune. Pune is the also IT hub, and it is very famous for information and technology. And it is also located in Maharashtra. And Hyderabad. Everybody knows that Hyderabad is very famous city, and Charminar is also located in Hyderabad, and it is the capital of Telangana. Nowadays, presently, Hyderabad is the capital of Telangana and Andhra Pradesh also, but after 10 years, Hyderabad will be the capital of Telangana only. And Bengaluru is the also famous city and IT city. This is the capital of Karnataka. And we will talk about Chennai. Chennai is the also city, very famous city, and it is the capital of Tamil Nadu. Many years ago, Chennai was known as Madras. Now we will talk about Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram is also capital of Kerala, and Thiruvananthapuram was known as Trivandrum. Now we will look into the map and we will locate this city in the map. First we will talk about Noida. Noida, as you know that Noida is situated in Uttar Pradesh, and Noida also comes under the NCR. What is the full form of NCR? Write in the comment box. Noida is the IT city of Uttar Pradesh, but it is located toward the Delhi. So you should locate Noida in western UP near to New Delhi. As you know that this is the New Delhi, capital of India. Now we will talk about Gandhinagar. Now before locating the Gandhinagar, you have to go to Gujarat state. And Gujarat state, you will see that this area located as a Gandhinagar. And Mumbai and Pune. Mumbai is also famous for seaport. Mumbai is also famous for major port, and Mumbai is also famous for cotton. Mumbai is also famous for the IT park. Now this is Mumbai, Maharashtra, and second one is Pune. Now you will notice that there are two important city in Maharashtra. One is Mumbai and second is Pune. These are IT hub and IT city of Maharashtra. Now we will talk about Hyderabad. Now this is the Hyderabad, and this area is Telangana, and it is the capital of Telangana. You should know where is Hyderabad. You should not locate toward the coastal area. If you locate in this area Hyderabad, then you will get 0 mark in your board exam. Okay. Now we will talk about Bengaluru. Bengaluru is the capital of
Karnataka. So we will look into the Karnataka state. This part is Karnataka. Okay, and this is the capital of Karnataka previously it was known as Bangalore, but now it is a Bengaluru. And this is very famous for IT sector, and it is also IT hub of southern India. Mysore is also there, but in your syllabus Bangalore is there. Now Chennai, again for locating the Chennai we have to go to Tamil Nadu, because this is the capital of Tamil Nadu, and this is the Chennai is near coastal area on the east coast. Okay, and Chennai is also famous major port. Understood? Now we will talk about Tiruvananthapuram. This is the last city of software technology park, and it is situated in Kerala. It is the capital of Kerala. Now you can see in the map, बिल्कुल आप नीचे देखोगे, when you look down in a stream south, then you will get Tiruvananthapuram. This is the Tiruvananthapuram, and it is the capital of Kerala. Now we will talk about chapter 7, lifelines of national economy. This is also locating and labeling. I have already told you what is the difference between locating and labeling, and what is the difference between locating and identifying. When we will talk, or we are talking about locating, it means we have to locate that area. For this thing you have to know the proper place where you have to locate. But in identifying, the map will be marked, and you have to only identify that this area is related to what things, and which city is related to this area. Now we are talking about locating. आपको क्या करना, मैप में you have to locate this area. When I was teaching this chapter, that time also I explained these major ports, and I have also located and denoted in the map. But still now I am revising it. You have to revise, and you have to do it in notebook, and after that you take photo of the maps and send to my WhatsApp number, or you can send in WhatsApp group. Now we will talk about Kandla. Kandla in Gujarat, Mumbai in Maharashtra, Marmuga, Goa, New Mangalore, Karnataka, Kochi in Kerala, Tuticorin, Tamil Nadu, Chennai, Tamil Nadu, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Paradeep, Odisha, and Haldia in West Bengal. हमने इसके बारे में बिल्कुल काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि कौन सा पोर्ट किसका सब्सिडरी पोर्ट है, कौन सा पोर्ट रिवर लॉक्ड पोर्ट है, कौन सा पोर्ट न्यू है, कौन सा पोर्ट ओल्ड है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है. ऑल द पोर्ट्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स. But now we are going to locate these ports in the map. Now you should, before you start to denote, locate the map, locate this city in the map, you should know these area are only located in the coastal area. हमने पहले भी बात कर लिया था कि जो कोस्टल एरिया में है, टोटल कितने स्टेट हैं, 9 स्टेट है. तो देयर आर 9 स्टेट ऑन कोस्टल एरिया. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट. नाउ वेस्ट वी विल टॉक अबाउट गुजरात. दिस स्टेट इज गुजरात. नाउ गुजरात, तो कांडला इज द फेमस मेजर पोर्ट इन गुजरात, क्योंकि ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया का जो पूरा एरिया है, अगर हम बात करें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर एंड मध्य प्रदेश, ये पूरे एरिया का जितना भी गुड्स है, जितने भी चीजें हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, जो भी चीजें हैं वो सब सारी चीजें एक कांडला पोर्ट से ही, कांडला बंदरगाह से ही ट्रांसपोर्ट होती है। ये यहाँ से ही एक्सपोर्ट होती है और यहीं से इंपोर्ट होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैंने मीनिंग बता दिया था। जो चीजें हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल की जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, एंड जो कंट्री दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में खरीदी जाती है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। तो पूरे एरिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कांडला से होता है। अब हम बात करते हैं मुंबई। तो मुंबई है यहाँ पे, जहाँ पे JNPT है, और मुंबई पोर्ट में बहुत ज्यादा लोड होने के बाद जो JNPT बनाया गया था। नाउ राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ JNPT। ठीक है, आपको JNPT का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र का और ये एरिया तेलंगाना का कुछ पार्ट जो यहाँ से नजदीक, और कर्नाटक के भी कुछ पार्ट, यहाँ का सारी चीजें जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीजें हैं ये सब इस पोर्ट से होते हुए जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नीचे आएंगे गोवा की तरफ। तो गोवा में एक बहुत फेमस पोर्ट है जिसका नाम मार्मुगा। मार्मुगा पोर्ट जो है आयरन का एक्सपोर्ट जो होता है सबसे ज्यादा मार्मुगावा जो पोर्ट है वहां से होता है, जो गोवा के अंदर है। अब हम चलते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका में जैसे हमने बात किया था कि बेंगलोर यहाँ पे फेमस सिटी है, बट अगर बेंगलोर से बेंगलुरु में से अगर बी हटा दिया जाए, यम लगा दिया जाए, तो यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा, और बेंगलुरु इज द फेमस पोर्ट ऑफ द कर्नाटका। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केरला। इन द केरला कोची इज द मेजर पोर्ट। जो कोचिन है, जो पहले कोचिन के नाम से जाना जाता है, बट नाउ डेज इट इज कॉल्ड कोची। नाउ कोची इज द फेमस पोर्ट ऑफ केरला, जो यहाँ पे है। अब हम अगर नीचे से जाते हुए बात करते हैं तो हम तमिलनाडु में आएंगे। तमिलनाडु में यहाँ पे तुत्तीकोरन है। मैंने एक क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में पहले भी कि विच इज द स्ट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट इज, जो सबसे साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट में कौन सा पोर्ट है, तो सबसे साउथ ईस्ट में जो पोर्ट है वो तुत्तीकोरन है, जिसको हम BO चिदम्बरनार पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो तुत्तीकोरन नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु में ही एक और पोर्ट है जिसका नाम है चेन्नई, जो बिल्कुल जो कैपिटल है तमिलनाडु का उस वहीं पे है, चेन्नई सी पोर्ट है। और ये चेन्नई सी पोर्ट भी है एंड चेन्नई इज आल्सो एयरपोर्ट भी है। ओके, अब हम बात करते हैं इन्नौर भी इसके पास में ही है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा पोर्ट है। और विशाखापट्टनम। अब हम आ जाते हैं तमिलनाडु में। हम तमिलनाडु का हो गया, तमिलनाडु में हमने देखा 2 पोर्ट है, 3 पोर्ट हो गया। और इसके बाद हम आंध्र प्रदेश में आते हैं। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो है बहुत फेमस और काफी बड़ा पोर्ट है, जहां से वहां पे हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस की नेवी की फ्लीट भी है। जैसे अगर हम बात करें नेवी की, सब 2 फ्लीट है, सबसे बड़ी जो ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट। जो विशाखापट्टनम है उसको हम ईस्टर्न फ्लीट बोलते हैं, जो मुंबई है उसको हम वेस्टर्न फ्लीट बोलते हैं, जो इंडियन नेवी के लिए काफी फेमस माना जाता है। ओके, तो ये विशाखापट्टनम है जहां से बहुत स्टील का और आयरन का, ये सब सारी चीजों का बिजनेस होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। पारादीप हमने बात किया, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहां से ट्रांसपोर्ट का काम होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम अभी पारादीप हो गया। अब कोलकाता है, कोलकाता के पास यहाँ पे ही हल्दिया पोर्ट है। ठीक है, तो हमने देख लिया हल्दिया एंड कोलकाता, वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो हमने ये भी देख लिया कि जो सी पोर्ट है, जो मैंने ऑलरेडी मेजर पोर्ट आपको पढ़ाया था, ये दोबारा मैंने पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो हमने अमृतसर ऑलरेडी बताया हुआ, फिर भी रिवाइज कर रहा हूँ। अमृतसर, जिसको राजा सांसी बोलते हैं, वो पंजाब में। इसके बाद दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो न्यू दिल्ली में। आपको नाम पता होना चाहिए, जो राजा सांसी है अमृतसर, इंदिरा गांधी दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, मीनामकम चेन्नई, कोलकाता में नेताजी सुभाष, हैदराबाद में राजीव गांधी। ये नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही आएगा, नाम दे देगा आपको, जगह नहीं देगा। तो इफ यू नो द नेम ऑफ द एयरपोर्ट देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इन द मैप। ठीक है,
अब हम चलते हैं यहाँ से बात करते हैं सबसे ऊपर। तो ये देखो श्री गुरु, यहाँ पे जो है अमृतसर है, बिल्कुल ठीक यहाँ पे अमृतसर है, चंडीगढ़ का इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे अमृतसर है। यहाँ पे अमृतसर के पास जो है राजा सांसी है। फिर न्यू दिल्ली की बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद दिल्ली हो गया, अमृतसर हो गया। फिर मुंबई, मुंबई में देखिए छत्रपति शिवाजी, मुंबई को कई बार देखते हैं, मुंबई में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। मुंबई क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई में हमने देख लिया अभी जस्ट, सी पोर्ट भी देखा था, तो यहाँ पे ये चेन्नई एयरपोर्ट है। अब हम इसकी बात करते हैं कोलकाता। कोलकाता भी फेमस है क्योंकि कोलकाता में सी पोर्ट भी है, इसलिए हमने कोलकाता को पहले भी देखा था, जिसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है इसको हम राजीव गांधी एयरपोर्ट बोलते हैं। राजीव गांधी एयरपोर्ट, अगर राजीव गांधी का नाम आता है तो कहाँ पे है वो? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना में। तो हमने जितने भी आपके चैप्टर से जितने भी मैप वर्क्स थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिया। अब कोई भी नहीं बचा हुआ है। अभी मैंने जो पढ़ाया है इसको आपको तीनों मैप का होमवर्क करना है और फोटो खींच के मेरे जो सोशल साइंस का ग्रुप है उसमें डालना है, या तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी डाल देना है। और इसके अलावा कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछिए। ये सब खत्म हो चुका है, पूरा सोशल साइंस का मैप वर्क कंप्लीटली खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।